Dear students, we have discussed the concept of permutation in quite detail. Permutation is a bijection on a finite set. So let's recall what a permutation is with the help of an example. In fact, we are going to discuss special permutations called cycles, transpositions, and then we will discuss a very important concept, that is alternating group. So let's recall the concept of permutation with the help of few examples. So let the finite set S be, let S is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Then let me write few permutations. 1, 2, 3, 4, 5. Let's take permutation in which 1 goes to 4, 2 goes to 5, 3 goes to 3, 4 goes to 1, and 5 goes to 2. We can take another permutation, 1, 2, 3, 4, 5, and let's take this permutation as 1 goes to 3, 2 goes to 5, 3 goes to 1, 4 goes to 2, and 5 goes to 4. And we can take another permutation, 1, 2, 3, 4, 5, and let's take in this permutation 1 goes to 5, 2 goes to 4, 3 goes to 2, 4 goes to 1, 5 goes to 3. So this is another permutation. Let's name these permutations. Let's call this permutation as alpha, this permutation as beta, this permutation as gamma. So these are permutations. Now let's recall how we multiply permutation with each other. So as example, let's multiply alpha with beta. So alpha permutation is 1, 2, 3, 4, 5, then 4, 5, 3, 1, 2, and the beta permutation is 1, 2, 3, 4, 5, and 3, 5, 1, 2, 4. And product of these two permutations is going to be 1, 2, 3, 4, 5. And you know that how we multiply the permutations. We start with 1, 1 goes to 3, then we come to first permutation, 3 goes to 3, so 1 goes to 3. Then 2 goes to 5, and then 5 goes to 2, so 2 goes to 2. Then 3 goes to 1, 1 goes to 4, so 3 goes to 4. And then 4 goes to 2, and 2 goes to 5, so 4 goes to 5. And then 5 goes to 4, 4 goes to 1, so 5 goes to 1. So this is product of these two permutations. I have just recalled the method of multiplying two permutations. Now let's see what cycles are. Let's see examples of cycles. So first example, let's consider this particular example. Let's take alpha 1, 2, 3, 4, 5, and let's take 1 goes to 5, 2 goes to 4,
3 goes to 2, 4 goes to 1, 5 goes to 3. So alpha, it won't make any difference, but my alpha is, it was gamma previously. Okay, in this example we are naming it alpha. We could have named it gamma as well, but so this is a permutation. And note that 1 goes to 5, then 5 goes to 3, then 3 goes to 2, then 2 goes to 4, then 4 goes to 1. So we can write it. Let me explain it again. 1 goes to 5, so 1 goes to 5, 1 goes to 5, then 5 goes to 3, so 5 goes to 3, and then 3 goes to 2, so 3 goes to 2, then 2 goes to 4, 2 goes to 4, and then 4 goes to 1, 4 goes to 1, so cycle is completed. So this is a cycle. So this permutation is a cycle. So we have written alpha as a cycle. So we have written alpha as a cycle. So we have written the permutation alpha as a cycle. Let's take another example. Let's take this permutation beta. This is equal to 1, 2, 3, 4, 5. And 1 goes to 3. This is beta. 1 goes to 3. Or we can take some other permutation, not necessarily the same beta. So 1 goes to 3. 2 goes to 1. It's not the same beta. You can take any permutation. I simply want to make it a cycle. So 1 goes to 3, 2 goes to 1, 3 goes to 4, 4 goes to 5, and 5 goes to 2. And this is equal to, you can see that this permutation is equal to, note that 1 goes to 3, so 1 goes to 3, 3 goes to 4, so 3 goes to 4, 4 goes to 5, so 4 goes to 5, 5 goes to 2, 5 goes to 2, and then 2 goes to 1, so cycle is completed. So this is a cycle. So we have represented beta as a cycle. So we have represented beta as a cycle. Let's take this example. Gamma is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. If you like, you can take more elements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And let's take 1 goes to 4, 2 goes to 5, 3 goes to 2, 4 goes to, let's say, 6, 5 goes to 1, and 6 goes to 3. 3 ही रह जाता है. अब देखिए, इसे हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, अब इतिहास इसे नोट कीजिए, 1 गोज टू 4, तो अब लिखेंगे 1 एंड देन 4. अब 4 नोट कीजिए, 4 गोज टू 6, तो 4 के बाद आप 6 लिखेंगे. अब 6 नोट कीजिए, 6 गोज टू 3, तो 6 के बाद आप 3 लिख देंगे. अब 3 को नोट कीजिए, 3 गोज टू 2, तो 3 के बाद आप 2 लिख देंगे. और अब 2 को नोट कीजिए, 2 गोज टू 5, तो 2 के बाद आप यहाँ 5 लिख देंगे. अब 5 देखिए, 5 गोज टू 1, जो कि हमारा शुरू का सबसे पहला नंबर था. 5 गोज टू 1, तो ये साइकिल मुकम्मल हो जाता है. सो गैमा, सो वी हैव रिटन गैमा एज साइकिल. सो वी हैव रिटन गैमा एज अ साइकिल. हमने गैमा को साइकिल की नोटेशन में लिख दिया है. सो यू कैन सी व्हाट डू वी मीन बाय साइकिल. So having said that, what cycles are,
Let's take an other case. शुरू में याद होगा मैंने एक एग्जांपल लिखी थी अल्फ़ा, और उसे मैंने साइकिल की शक्ल में कन्वर्ट करके आपको नहीं दिखाया. सो लेट्स टेक दैट एग्जांपल. अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 and then 2 5 4 5 3 1 2. इसे ज़रा गौर से देखिए कि इस केस में हम लिखेंगे 1 goes to 4 and then 4 goes to 1. 1 goes to 4 4, तो ये साइकिल यही मुकम्मल हो जाता है. तो हम इसी को यहीं पर क्लोज कर देंगे. इसके बाद हम आते हैं 2 goes to 5 and 5 goes to 2. 2 goes to 5 and 5 goes to 2. तो ये साइकिल यहाँ मुकम्मल हो जाता है. 3 goes to 3 साइकिल जो है ये आप चाहें तो आप लिख दीजिए, लेकिन हम अक्सर ये जो साइकिल किसी एलिमेंट को फिक्स करने वाला होता है ना, इसे हम अक्सर नहीं लिखा करते. तो ये जो आपको नज़र आ रही हैं साइकिल जो नज़र आ रहे हैं, इनको हम बस यूँ लिखेंगे 1 4 and 2 5. तो इस केस में ये जो परमुटेशन है ये दो साइकिल्स का प्रोडक्ट है. इससे पहले जो हमने एग्जांपल्स देखी थी उसमें हर परमुटेशन एक साइकिल थी, लेकिन ये जो अल्फ़ा परमुटेशन है ये एक साइकिल नहीं है बल्कि दो साइकिल्स का प्रोडक्ट है. सो वी नोट दैट. और ये जो साइकिल होता है जो कि किसी एलिमेंट को फिक्स करता है, इसे हम अक्सर नहीं लिखा करते. कभी ज़रूरत पेश है तो हम लिख भी लेते हैं, लेकिन इन जनरल हम इस किस्म के साइकिल को नहीं लिखा करते. सो वी नोट दैट अल्फ़ा इन दिस केस, इससे पहले भी हमने अल्फ़ा ही नाम रखा था एक परमुटेशन का. सो वी नोट दैट अल्फ़ा इन दिस केस इज़ प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स. इज़ प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स. तो ये बात मैं इसमें नोट कर देता हूँ साथ ही कि नोट दैट अल्फ़ा इज़ नॉट अ साइकिल. इज़ नॉट अ साइकिल. मैं इसे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि अल्फ़ा साइकिल नहीं है बल्कि दिस इज़ प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स. लेट्स टेक एन अदर एग्जांपल which is product of cycles. So let's take this particular permutation. Let alpha let's take beta is equal to 1 2 3 4 5 6 and 4 5 1 3 6 2. इसे हम लिखते हैं साइकिल की शक्ल में. तो आप देखिए 1 goes to 4. सो हम 1 4 लिखने के बाद अब 4 देखेंगे. 4 goes to 3, तो 4 के बाद हम 3 लिख देंगे. अब 3 देखेंगे 3 goes to 1, लेकिन आप देखिए 1 तो हमने पहले लिखा हुआ है, तो ये साइकिल यहाँ मुकम्मल हो जाता है. अब 3 के बाद अब आप आ जाइए 4 इसमें आ चुका है, 1 इसमें आ चुका है. अब हम 2 पर आ जाते हैं. 2 goes to 5. सो 2 goes to 5. 5 goes to 6. 5 goes to 6 and 6 goes to 2. देखिए 6 goes to 2. तो ये साइकिल भी यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है. सो बीटा इज़ अगेन प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स. सो beta is product of 2 cycles. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स राइट नेम ऑफ दिस permutation as gamma. So let's take on 6 elements again. 1 2 3 4 5 6.
and let's take 1 goes to 4, 2 goes to 5, 3 goes to 2, 4 goes to 6, 5 goes to 1, and 6 goes to 3. I think I have written the same permutation which 1 6 1 4 6 3 2 5. So it has just got repeated, but anyway we wrote this in way. So let's just write this is cycle we have written above already. So this 1 goes to 4, then 4 goes to 6, then 6 goes to 3, then 3 goes to 2, and then 2 goes to 5, and then 5 goes to 1. तो 5 goes to 1. तो ये वही है जो हमने रिपीट कर दिया. परमुटेशन लिखते वक्त वही परमुटेशन लिखी गई जो इससे पहले हमने डिस्कस कर रखी थी. बट एनीवे दिस इज अ साइकिल एज वेल. बीटा permutation was alpha permutation was product of cycles, beta permutation was product of cycles, but the gamma permutation we have written that is a cycle. Let's take another permutation which let's hope it becomes product of cycles. So gamma is cycle, gamma is cycle. Alpha is not cycle, this is product of cycles. Beta is not cycle, this is product of cycles. Incidentally gamma is cycle. We just repeated the above permutation. Let's take another permutation. Let's call it delta. So delta, let's take it again. 1 2 3 4 5 6, और आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं. लेट्स टेक अप टू 7, एंड लेट्स टेक 1 goes to 6, 2 goes to 7, 3 goes to 2, 4 goes to 5, 5 goes to 4, 6 goes to 1, and 7 goes to 3. तो इसे देखिए, हम इसको अगर हम साइकिल्स की शक्ल में लिखें तो यूँ होगा कि 1 goes to 6, तो आप लिखेंगे 1 and then 6. अब 6 देखिए, 6 goes to 1, तो ये एक साइकिल बन जाता है 1 6. 1 के बाद फिर आप 2 लिख लीजिए. 2 goes to 7, so this is 2 7, and then 7 goes to 3, 7 goes to 3, and then 3 goes to 2. So 2 goes to 7, 7 goes to 3, and then 3 goes to 2. So 3 goes to 2. अब देखिए साइकिल यहाँ पर ये मुकम्मल हो जाता है. So 3 goes to 2. So 2 7 3 is one cycle. Again this is a second cycle, and then now let's come to 4. So 4 goes to 5. 4 goes to 5, 4 goes to 5, and 5 goes to 4. अब देखिए साइकिल यही मुकम्मल हो जाता है. सो देयरफॉर gamma is delta. Therefore delta is product of 3 cycles. Product of 3 cycles. तो कोई परमुटेशन जो है ना वो साइकिल हो भी सकती है और वो साइकिल्स का प्रोडक्ट भी हो सकती है. So a permutation can be a cycle, can be product of cycles. Let's have a exercise for you. So let me write it as exercise. और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए ताकि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकें. सो एक्सरसाइजेस. सो मैं कुछ परमुटेशन लिखता हूँ, आप इन परमुटेशन को प्रोडक्ट्स ऑफ साइकिल्स की शक्ल में या फिर साइकिल्स की शक्ल में लिखिए.
So let me give you few examples. First, for writing as cycles, first part of exercise is that write following permutations as cycles. Write following permutations as cycles. Or first permutation, let's have that permutation, let's name it alpha, and 1 2 3 4 5 6, and 3 6 5 2 4 1. मैंने कोशिश की ऐसी परमुटेशन में बनाऊं जो साइकिल्स बन जाए, मुझसे कोई मुमकिन गलती ना होगी हो कहीं, लेकिन बहरहाल इनको वर्क आउट कीजिए. आई होप दैट दिस परमुटेशन विल बिकम अ साइकिल. Second permutation, let me propose that beta is equal to 1 2 3 4 5 and 2 5 1 3 4. इस परमुटेशन को भी साइकिल की शक्ल में लिखिए. एंड थर्डली, लेट्स टेक दिस परमुटेशन, लेट्स नेम इट एज गैमा. 1 2 3 4 5 6. आप चाहें तो खुद भी परमुटेशन बना सकते हैं और उसे लिख सकते हैं कि वेदर इट बिकम्स अ साइकिल और इट बिकम्स अ प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स. सो 5 3 6 1 2 4. तो इन परमुटेशंस को प्रोडक्ट, इन परमुटेशंस को साइकिल्स की शक्ल में लिखिए. आई होप दे विल बिकम साइकिल्स. लेट्स टेक सेकंड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. इन दिस केस यू विल हैव टू राइट द परमुटेशंस एज प्रोडक्ट्स ऑफ साइकिल्स. सो राइट फॉलोइंग परमुटेशंस as products of cycles. And let the first one, names हम यही अल्फा बीटा गैमा ही रखते चले जाते हैं. So let the first permutation be 1 2 3 4 5 6. और सेकेंड रो आप ले लीजिए 4 5 1 3 6 2. सेकेंड परमुटेशन को हम बीटा ही कह लेते हैं. सो लेट्स हैव बीटा एज 1 2 3 4 5 6. and in this case let 1 goes to 4, 2 goes to 6, 3 goes to 5, 4 goes to 1, 5 goes to 2 and 6 goes to, of course, to 3. वो इसमें नहीं है. So write this permutation as product of cycles. And let's have the third permutation. Let's call it gamma. So 1 2 3 4 5, and let's have the second row as 5 3 2 1 4. तो आपने इस परमुटेशन को भी प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स की शक्ल में, इसे भी प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स की शक्ल में और इसे भी प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स की शक्ल में लिखना है. और ये काम बहुत ज़रूरी इसलिए है कि इसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए फिर इन चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा. सो प्लीज़ डू दीज थिंग्स वेरी डिलीजेंटली एंड वेरी केयरफुली. तो परमुटेशंस की जो मैं आपको एक्सरसाइजेज दी हैं कि इनको आप लिखिए साइकिल्स की शक्ल में भी. दीज आर साइकिल्स इन फैक्ट. इनको आप लिखिए प्रोडक्ट्स ऑफ साइकिल्स की शक्ल में, बिकॉज दीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ साइकिल्स. मैंने कोशिश की थी ऐसी बनाऊं, बट यू हैव टू चेक दैट वेदर
I am correct or not. So having done that, let's come to a very simple concept related with cycles and products of cycles. मैं पहले आपको जो हमने एग्जांपल्स की हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहले लेंथ ऑफ दिस साइकिल इज़ 5. अगेन इस साइकिल की लेंथ भी 5 है. सो लेंथ ऑफ अ साइकिल. इस केस में देखिए इस साइकिल की लेंथ भी 5 है. ये परमुटेशन जो है ये 3 साइकिल्स का प्रोडक्ट है. हम ये जो 3 goes to 3 इस किस्म में फिक्स होने वाले साइकिल को अक्सर हम नहीं लिखा करते, लेकिन बहरहाल इस साइकिल की लेंथ 2 है, इस साइकिल की लेंथ 2 है और इस साइकिल की लेंथ 1 है. इसे सॉरी मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, इसे हम यूँ लिखा करते हैं, हम सिर्फ 3 लिख दिया करते हैं. 3 दैट्स इट. 3 goes to 3. तो ये ज़रा नोट कर लीजिए, दिस इज़ जस्ट 3. तो इस साइकिल की लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 2 है, इस साइकिल की लेंथ 1 है. इस केस में देखिए ये बीटा है, इसमें इस साइकिल की लेंथ 3 है, इस साइकिल की लेंथ भी 3 है. इस केस में गैमा हमने पहले ही नोट कर रखा है, इसके साइकिल की लेंथ 5 है. डेल्टा में जो 3 साइकिल्स हैं, पहले साइकिल की लेंथ 2 है, दूसरे साइकिल की लेंथ 3 है और तीसरे साइकिल की लेंथ 5 है. सो लेंथ ऑफ अ साइकिल, किसी साइकिल में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनकी तादाद को लेंथ ऑफ द साइकिल कहते हैं. मैं इसको लिख देता हूँ एज ए डेफिनेशन कि so number of elements in a cycle is called length of the cycle. So number of elements in a cycle is called length of the cycle. Length of the cycle. हम एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले. सो 1 5 3 2 4 1 5 3 2 4 is cycle of length 5. इस साइकिल ऑफ लेंथ 5. तो इस साइकिल की लेंथ 5 है. हम अपनी पहली एग्जांपल ही से ले लेते हैं. साइकिल ऑफ लेंथ, दिस पर्टिकुलर साइकिल 1 4, इसकी लेंथ 2 है. सो लेंथ ऑफ साइकिल वन 4 इज 2. इस साइकिल की लेंथ 2 है. एग्जाम्पल साइकिल ऑफ लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर साइकिल, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, इसकी लेंथ 1 है. सो लेंथ ऑफ साइकिल इस साइकिल की लेंथ जो है ये 1 है. और हमने एक साइकिल लेंथ 3 का भी किया था, जैसे 2 5 6, इसकी लेंथ 3 है. सो लेंथ ऑफ साइकिल टू 5 6 इज 3. तो इस साइकिल की लेंथ 3 है. तो किसी भी साइकिल की लेंथ जो है वो उसमें एलिमेंट्स की तादाद को हम कहते हैं. हैविंग सेड दैट, एक चीज़
नोट कीजिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी थ्योरी की डेवलपमेंट में हमें काफ़ी ज़्यादा उनको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस केस में या इस कंसेप्ट में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जिन साइकिल्स की लेंथ 2 होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे ये साइकिल है, इसकी लेंथ 2 है। इससे पहले भी हमने साइकिल ऐसे किए हैं। मैं एग्जांपल एक और लिख देता हूँ। एग्जांपल, लेंथ ऑफ साइकिल हमने पीछे एक एग्जांपल में ये साइकिल भी किया था 3, 5। तो इस साइकिल की लेंथ भी 2 है। तो जिस साइकिल की लेंथ 2 हो उसे ट्रांसपोजिशन कहते हैं। सो लेट मी राइट दिस डेफिनेशन। ये डेफिनेशन है ट्रांसपोजिशन की। A cycle of length 2 is called transposition. So a cycle of length 2 is called transposition. और कभी कभी हम इसे 2 साइकिल भी कह लिया करते हैं, और 2 साइकिल जिसकी लेंथ 2 हो। और इसी पैटर्न पर अगर आप चाहें तो आप इसे 3 साइकिल कह सकते हैं, इसे आप 1 साइकिल कह सकते हैं। तो जिस साइकिल की लेंथ 2 हो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, और इफ यू लाइक वी कैन कॉल इट 2 साइकिल एज वेल। So let's take an example. Let's consider this particular transposition alpha on 6 elements 1 2 3 4 5 6, and let the second row be 6 4 5 1 3 2। और इसे आप साइकिल्स के प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकते हैं। ये साइकिल नहीं बनता, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स। एक साइकिल आप देख सकते हैं 1 goes to 6, then 6 goes to 2, and then 2 goes to 4, and then 4 goes to 1। तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। एंड देन 3 goes to 5 एंड 5 goes to 3, तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। सो दिस पर्टिकुलर permutation is product of these 2 cycles, and one of these cycles is of length 4 and second cycle is of length 2, or we call it transposition. So alpha is product of 2 cycles, one of them is of length 4, और अगर आप चाहें तो इसे आप 4 साइकिल भी कह सकते हैं, और 4 साइकिल। And the second one is a transposition, and the second one is a transposition. तो हमने जो एग्जांपल डिस्कस की है इसमें ये परमुटेशन जो है ये 2 साइकिल्स का प्रोडक्ट है। उनमें से एक साइकिल की लेंथ 4 है और दूसरे साइकिल की लेंथ जो है वो 2 है। वी कैन टेक अनदर एग्जांपल। सो इन दिस केस कंसीडर दिस परमुटेशन, लेट्स कॉल इट बीटा 1 2 3
4, 5. Let's take it on 7 elements, and let's take second row as 4, 6, 1. 1 goes to 4, 2 goes to 6, 3 goes to 1, 4 goes to 7, 5 goes to 2, 6 goes to 5 और 7 goes to 3. हमने शायद पहले भी या इसी किस्म की परमुटेशन हमने ली है. अब इस केस में देखिए, इस परमुटेशन को हम लिख सकते हैं 1 goes to 4, 1 goes to 4 and then 4 goes to 7. थोड़ा ज़रा फासला रखें ताकि ये अंदाज़ा रहे आपको वी आर राइटिंग अ साइकिल. सो 1 goes to 4, 4 goes to 7 and then 7 goes to 3. और फिर नोट कीजिए 3 goes to 1 और 1 आप पहले लिख चुके हैं, तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है. एंड देन आफ्टर दैट लेट्स कम टू 2 नाउ. 1 ये सब, इसके बाद जो सबसे छोटा नंबर है और जो इसमें रिप्रेजेंट नहीं हो रहा ना, उससे आप बात शुरू करेंगे. दैट इज़ 2 एंड 2 goes to 6, 2 goes 6, 6 goes to 5, 6 goes to 5 एंड 5 goes to 2. देखिए 5 goes to 2, फिर ये साइकिल मुकम्मल हो जाते हैं. इसका सबसे पहला एलिमेंट 2 है एंड 5 goes to 2, तो ये साइकिल भी मुकम्मल हो जाता है. तो therefore बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स. one of them is of length 4 and second is of length 3. So beta is product of 2 cycles one of them that is, हम लिख देते हैं वो कौन सा है, that is 1473 is of length 4 and the second that is where 265 and this cycle is of length 3 तो हमने इस परमुटेशन को 2 साइकिल्स के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा है और एक साइकिल की लेंथ जो है वो 4 है और दूसरे साइकिल की लेंथ जो है वो 3 है. सो लेट मी गिव यू एन एक्सरसाइज अगेन. So exercise आपने इन परमुटेशंस को साइकिल्स के प्रोडक्ट्स की शक्ल में लिखना है और फिर प्रोडक्ट में जो साइकिल्स हैं उनमें से हर साइकिल की लेंथ लिखनी है आपने. सो राइट फॉलोइंग परमुटेशंस. Write following permutations as products of cycles. Following permutations as products of cycles. And write length of each cycle. And write length of each cycle. मैं दोबारा कह दूं कि आप ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इनकी अगर साथ साथ आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इन चीज़ों को बहुत बेहतर अंदाज में समझ रहे होंगे. सो लेट मी गिव यू दैट परमुटेशन. एक तो हम इसे हम अल्फा क्या लेते हैं
हम मतलब एलिमेंट्स की तादाद ज़्यादा ले रहा हूँ इस केस में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यू कैन डू इट वेरी इजीली। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सेकेंड रो हम ले लेते हैं 5 6 1 9 3 2 4 5 6 1 9 3 2। तो क्या हमारे पास रह गया इसमें लिखने वाला, 4 8 4 8 5 6 1 2 3। हमने इसमें 7 नहीं हमने लिखा, तो 7 को फिर हम फिक्स कर देते हैं, 7 गोज़ टू 7। तो यहाँ आपका 1 साइकिल बनेगा, जिसे अक्सर हम रिवीजन करते वक्त नहीं लिखा करते, लेकिन लिख दीजिए ताकि आपको 1 साइकिल की भी प्रैक्टिस हो जाए। एंड सेकेंडली लेट्स टेक बीटा एज 1 2 3 4 5 6 7 एंड सेकेंड रो आप ले लीजिए 6 5 1 7 4 3 2। तो आपने इन दोनों परम्यूटेशंस को साइकिल के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखना है और हर साइकिल की लेंथ भी आपने लिखनी है। सो एक चीज़ और नोट कीजिए कि जब हम किसी परम्यूटेशन को साइकिल की शक्ल में लिख लेते हैं तो हम उस साइकिल को ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो ये मैं बात पहले एग्जांपल की शक्ल में आपको पहले समझा देता हूँ, लेकिन लेट्स नोट दैट थिंग फर्स्ट। एवरी साइकिल कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। सो note every cycle can be written as product of transpositions। तो हम इसे फिलहाल थ्योरम के तौर पर प्रूव नहीं कर रहे, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाता हूँ कि हाउ डू वी डू दैट। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, लेट्स टेक अल्फा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 and 5 4 6 3 2 1। मुमकिन हमने परम्यूटेशन पहले भी कहीं लिख रखी हो, तो आप इसे देख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1 goes to 5, 5 goes to 2, 2 goes to 4, 4 goes to 3 and 3 goes to 6 and then 6 goes to 1। तो ये एक साइकिल पूरा हो जाता है। So we have written this particular permutation in the form of cycle। So we can write अब ये जो साइकिल है ना 1 5 2 4 1 5 2 4 3 6,
हम इस साइकिल को ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकते हैं, और इस मेथड को आपने ज़रा गौर से सीखना है। नोट ये कीजिए कि करेंगे हम ये कि ये जो लास्ट एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट के साथ इसके बिल्कुल एडजेसेंट एलिमेंट का हम इसके साथ ट्रांसपोजिशन बना लेंगे। तो वी राइट इट 6 3, फिर इसके बिल्कुल पीछे वाले के साथ 6 4, फिर इसके बिल्कुल पीछे वाले के साथ 6 2, फिर इसके बिल्कुल पीछे वाले के साथ 6 के बिल्कुल पीछे वाले के साथ 6 1। तो हम इस साइकिल को इन ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकते हैं। इसे आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। आप इसे यूँ भी कर सकते हैं कि आप ये फर्स्ट एलिमेंट ले लें, इसकी ट्रांसपोजिशन आप 6 के साथ बनाएं, फिर 3 के साथ, फिर 4। तो ये दिस व्हाट आई एम सेइंग। आप यूँ भी लिख सकते हैं 1 6 1 3 1 4 1 2 and 1 6 1 3 1 4 1 2 and then 1 5। इन दोनों में से इट इज़ 1 5, थोड़ा मुझे फास्टर रखना चाहिए। इन दोनों में से जिस भी तरीके से आप चाहें आप इसको लिख लीजिए, कोई एक तरीका अडॉप्ट कर लीजिए, शायद यही बेहतर हो ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें जहन में ना रखनी पड़ सकें। एक बात मैं ज़रा आपसे डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। आप अक्सर आपने एक सवाल पूछा होता है किताबों के बारे में कि हमें किताबें बताइए कि हम कौन सी किताब से ये चीज़ें सीखें। तो काफ़ी किताबों के नाम जो है ना आपके सिलेबस के आखिर में लिखे हुए हैं, कोर्स आउटलाइन, लेकिन इसमें एक बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करने के लिए 2 मेथड तो नहीं मुझे कहना चाहिए, लेकिन 2 अंदाज़ हैं जिससे परमुटेशंस को मल्टीप्लाई किया जाता है, और ये असल में डिपेंड करता है कि आप फंक्शंस की कंपोजिशन को किस तरह से लिखते हैं। उनमें से एक अंदाज़ जो है ना वो मैंने इख्तियार किया था आपके लिए, और सब कुछ हम उसी अंदाज़ के साथ हम कर रहे हैं। हम अपने उस पैटर्न से बाहर नहीं निकल रहे, और अक्सर आथर ऐसा करते हैं। मैंने चाहा था आपको मैं बता दूं कुछ किताबों के नाम। आपको याद होगा कि आपकी सिलेबस आउटलाइन में लिखी हुई है। उसमें एक बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा बाय ड्यूमेट की बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा। मैं ये नोट यहाँ लिख देता हूँ। मैं जस्ट लेट्स थोड़ी देर के लिए हम पास करते हैं, और मैं यहाँ ये नोट लिखता हूँ, पास नोट। एक तो किताब है एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा, और ये है बाय ड्यूमेट की बुक है, बड़ी मशहूर बुक है, DUMMIT और DS ड्यूमेट। एक और किताब है उसका नाम भी यही है एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा, और इसके ऑथर का नाम है थॉमस W जॉर्डसन, JUDSON। ये किताब आपके कोर्स आउटलाइन में भी लिखी हुई है। ये किताब भी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन बहरहाल अलजबरा में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं। ये दोनों किताबें और भी बहुत सारी बुक्स जो है ना वो वही अप्रोच कर रही होती हैं जो हमने अडॉप्ट की हुई है। सो नोट दीज बुक्स have same approach as we have। जो जिस तरह से हम कर रहे हैं परमुटेशन को, ये बुक्स भी उसी तरह करती हैं।
लेकिन ये बात नोट कीजिए, काफ़ी बुक्स ऐसी हैं जो थोड़े से डिफरेंट अंदाज में बात एक ही है, इसमें डिफरेंट भी शायद नहीं मुझे कहना चाहिए, लेकिन आपको शायद देखने में ऐसा लगेगा। जैसे ये जो बुक है टॉपिक्स इन अलजबरा, टॉपिक्स इन अलजबरा, ये बुक है बाय हर्स्टीन, और ये बुक भी आपके कोर्स आउटलाइन में लिखी हुई है। और एक बुक और भी है, दैट नेम ऑफ द बुक इज़ अलजबरा, और ये बुक लिखी हुई है बाय PM कोहन, ये भी आपके सिलेबस में है, बहुत अच्छी किताब है ये। लेकिन ये दोनों बुक्स और भी बहुत सारी बुक्स जो है ना वो थोड़ी सी अप्रोच ज़रा डिफरेंट करती हैं परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करने के हवाले से। जिस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया था तरीका तो वही है जो वो मल्टीप्लाई करती हैं, लेकिन थोड़ा सा एक हल्का सा ट्विस्ट है। आप यूँ समझ लीजिए कि अल्फ़ा और बीटा परमुटेशन को मल्टीप्लाई करके हमारा जो रिज़ल्ट आता है, इन दोनों बुक्स में बीटा और अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करके वो रिज़ल्ट आता है। तो थोड़ा ज़रा ट्विस्ट हल्का सा है बुक्स की अप्रोच में। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम इस पैटर्न पर हम चल रहे हैं। इसकी ख़ास वजह है मैंने इसको अडॉप्ट किया था कि ये आपके लेवल पर थोड़ा सा आसान रहता है। थोड़े एडवांस आप पढ़ रहे हो तो फिर आप इस मेथड की तरफ भी आ सकते हैं। तो ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मुमकिन है कि आप कोई ऐसी किताब देखें जिसमें परमुटेशन को मल्टीप्लाई करना और फिर किसी साइकिल को ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखना जिस तरह से हमने किया है, उस किताब में आपको ज़रा मुख्तलिफ नज़र आए। मैं सिर्फ आपको उसकी वजह बता रहा हूँ कि चूँकि दो अप्रोचेज़ हैं जिनके तहत ये काम किया जाता है। अप्रोच तो एक ही है लेकिन बार हल्का सा ट्विस्ट है उसमें, तो इस वजह से इम्कान है कि आपको चीज़ कोई मुख्तलिफ लगे देखने में। तो अगर ऐसी सूरत हो तो यू कैन डिस्कस विद मी। मैंने सिर्फ इसलिए आपको बताया कि आप चूँकि यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स और आप इस सिस्टम में ख़ुद भी स्टडी करते रहते हैं, और किसी में कोई ऐसी चीज़ अगर आपको नज़र आए तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कंटेक्ट मी। सो हैविंग सेड दैट, it was 4 and then I think we are going to page number 5. तो ये थोड़ी सी एक बात थी दरमियान में जो मैं चाहता था मैं आपसे डिस्कस करूँ। वी हैव डन दैट। तो डिफरेंट बुक्स की अप्रोच डिफरेंट हो सकती है।
So let's consider examples. Example 1 is, let's take this permutation alpha 1, and this is 1 2 3 4 5 6 7. 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4, 4 goes to 5, 5 goes to 6, 6 goes to 7, and 7 goes to 1. And you can see that this permutation is equal to this cycle. 1 goes to 2, 2 goes to 3, then 3 goes to 4, 4 goes to 5, 5 goes to 6, and 6 goes to 7. So this permutation is equal to this particular cycle, and this cycle can be written as product of transpositions as follows. अब ये करेंगे हम यूं कि हम 7 की 6 के साथ ट्रांसपोजिशन बना लेंगे, 2 साइकिल, 7 6 ट्रांसपोजिशन, देन 7 5 ट्रांसपोजिशन, देन 7 4, देन 7 3, देन 7 2, देन 7 1. So this is equal to 7 6 multiplied with 7 5 multiplied with 7 4 multiplied with 7 3 multiplied with 7 2, and then multiplied with 7 1. तो हमने इस साइकिल को इन ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट की शक्ल में लिख दिया है. हम यूं भी कर सकते हैं, हम 1 से शुरू कर सकते हैं, 1 की ट्रांसपोजिशन 7 के साथ, फिर 1 की ट्रांसपोजिशन 6 के साथ, फिर 1 की ट्रांसपोजिशन 5 के साथ, फिर 1 4, देन 1 3. तो वी कैन राइट दिस एज फॉलोज एज वेल. सो वी कैन राइट इट 1 7 multiplied with 1 6 multiplied with 1 5 multiplied with 1 4 multiplied with 1 3 multiplied with 1 2. तो पहले केस में भी देखिए कि ट्रांसपोजिशंस की तादाद 1 2 3 4 5 6 है, और दूसरे केस में भी ट्रांसपोजिशंस की तादाद 1 2 3 4 5 6 है. तो आप इस साइकिल को ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट की शक्ल में यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं. लेट्स जस्ट नोट दैट नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस in this particular representation, in fact, so number of transpositions is equal to, this is equal to 6. Let's come to second example. Consider this permutation alpha 2 is equal to 1 2 3 4 5, and 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1, 4 goes to 5, and 5 goes to 4. This particular permutation can be written as, you can see that 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1. So this is a complete cycle, 1 2 3, and then 4 goes to 5, 5 goes to 4. So this is another cycle, 4 5. So this permutation is equal to product of 2 cycles, और इनमें से एक साइकिल की लेंथ 3 है, दूसरे साइकिल की लेंथ 2 है, या यूँ कह लीजिए कि दूसरा साइकिल जो है वो पहले से ही ट्रांसपोजिशन है. हमें सिर्फ इस साइकिल को ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखना होगा. तो इसे हम लिख लेते हैं फिर. दिस इज इक्वल टू 1 2 3 को आप लिखेंगे 3 2 3 1. सो 1 2 3 कैन बी रिटन एज 3 2 3 1, और 4 5 तो पहले से ही ट्रांसपोजिशन है, ये साथ इसके इस तरह से आ जाएगी.
तो हम इस परमुटेशन को इन ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये मैं ज़रा रिकॉल कर दूं कि हमने इस परमुटेशन को ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखने के लिए जो हमने पहला तरीका इख्तियार किया तो वही हम थ्रू आउट अब करते रहेंगे। अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही तरीके को अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि बात जो है वो हमारे लिए आसान रहे। तो इसे हमने इस तरीके से लिख लिया और इस साइकिल को जो कि 3 साइकिल है इसे भी फिर हम इस पहले वाले मेथड को अडॉप्ट करते हुए लिख लेते हैं 3 2 3 1। तो हमने इस साइकिल को इन ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की शक्ल में लिख दिया और ये पहले से ही हमारे पास ट्रांसपोजिशन थी। सो दिस परमुटेशन कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 ट्रांसपोजिशंस। सो इन दिस केस number of transpositions is equal to 3. एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। लेट्स कॉल दिस एज alpha 3 and let's take alpha 3 as 1 2 3 4 5 6 7 and let's take 1 goes to 6, 2 goes to 7, 3 goes to 5, 4 goes to 1, 5 goes to 4, 6 goes to 2 and 7 goes to 3। और आप देख सकते हैं दिस ट्रांसपोजिशन इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर cycle. This cycle is 1 6. Note that 1 goes to 6, so 1 6, then 6 goes to 2, 1 6 2, then 2 goes to 7, so 1 6 2 7 and you can see that next we have 3 5 and 4। तो इस परमुटेशन को हम इस साइकिल की शक्ल में लिख सकते हैं और साइकिल करस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर परमुटेशन इज दिस वन। वी गॉट दिस परमुटेशन इज इन फैक्ट इक्वल टू अ साइकिल। इससे पहले वाली परमुटेशन जो है ना वो साइकिल नहीं थी, वो 2 साइकिल्स का प्रोडक्ट थी। इन दिस केस दिस परमुटेशन इज इक्वल टू दिस साइकिल और इस साइकिल को अब हम ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखते हैं वो पहले वाला तरीका इख्तियार करते हुए। सो दिस इज इक्वल टू 4 5, नोट दैट 4 5 multiplied with 4 3 multiplied with 4 7 multiplied with 4 2 multiplied with 4 6 and then finally multiplied with 4 1, this particular transposition. So this cycle can be written as product of these transpositions and number of these transpositions is 1 2 3 4 5 6, so these are 6 transpositions. So number of transpositions in this case is equal to 6। यानी हमने इस परमुटेशन को इस साइकिल की शक्ल में और इस साइकिल को 6 ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट की शक्ल में लिख दिया है। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। alpha 4, this is equal to 1 2 3 4 and 5 and let's take 1 goes to 4, 2 goes to 2, 3 goes to 3, 4 goes to 5 and 5 goes to 1. So the cycle we obtain is 1 goes to 4 and then 1 goes to 4, 4 goes to 5 and then 5 goes to 1। तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इस केस में देखिए कि हमें 2 1 साइकिल भी मिलते हैं, 2 और 3। और मैंने आपको बताया था कि 1 साइकिल्स को अगर ज़रूरत पेश आए तो हम लिख लिया करते हैं, लेकिन इन जनरल हम 1 साइकिल्स को नहीं लिखा करते। सो इन आवर केस दिस पर्टिकुलर परमुटेशन इज इक्वल टू दिस साइकिल। हम चाहें तो
1 साइकिल 2 भी साथ लिख दें और 1 साइकिल 3 भी लिख दें, लेकिन अक्सर हम 1 साइकिल्स को नहीं लिखा करते। सो दिस परमुटेशन इज इक्वल टू दिस साइकिल। अब इस साइकिल को हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन की शक्ल में, इस पहले वाले मेथड को अडॉप्ट करते हुए। सो दिस साइकिल इज इक्वल टू 5 4 multiplied with 5 1. So this cycle, this permutation is equal to this cycle, and this cycle is equal to product of two transpositions. So in this case number of transpositions is equal to 2. So number of transpositions जिनको मल्टीप्लाई करके हमें ये साइकिल या परमुटेशन मिल जाती है। सो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस in this case is equal to 1 and 2. तो ये 2 है। तो अब हम नोट करते हैं कि हमारे पास हर परमुटेशन की रिप्रेजेंटेशन में एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन साइकिल्स की तादाद कितनी थी। सो लेट्स सम अप द डिस्कशन। सो वी नोट दैट number of transpositions for alpha 1 is equal to 6. Number of transpositions in alpha 1 is equal to 6, and number of transpositions इन अल्फ़ा 2 में ट्रांसपोजिशंस की तादाद जो है वो दैट इज़ 3। अल्फ़ा 2 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इन अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 1 2 and 3। सो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इन अल्फ़ा 3 में ट्रांसपोजिशंस की तादाद जो है वो लेट मी सी नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इन अल्फ़ा 3 इज़ 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज 6, एंड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इन अल्फ़ा 4 इन अल्फ़ा 4 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा 4 में ट्रांसपोजिशन की तादाद हमारे पास 2 है। सो दिस इज़ 2। तो ये नोट करने के बाद ये नोट कीजिए कि अल्फ़ा 1 में ट्रांसपोजिशंस की तादाद 6 है जो कि एक इवन नंबर है। अल्फ़ा 3 में ट्रांसपोजिशंस की तादाद भी 6 है जो कि एक इवन नंबर है, और अल्फ़ा 4 में ट्रांसपोजिशंस की तादाद 2 है जो कि एक इवन नंबर है। तो देयरफॉर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 एंड अल्फ़ा 4 आर इवन परमुटेशंस। मैं रिकॉल कर दूं, अगर किसी परमुटेशन को साइकिल में कन्वर्ट करने के बाद उस साइकिल को हम ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखें और ट्रांसपोजिशंस की तादाद इवन हो तो दैट इज़ कॉल्ड इवन परमुटेशन, और अगर ट्रांसपोजिशंस की तादाद ऑड हो तो दैट इज़ कॉल्ड ऑड परमुटेशन। सो इन दिस केस अल्फ़ा इज़ इवन परमुटेशन, अल्फ़ा 1 इज़ इवन परमुटेशन, अल्फ़ा 3 इज़ इवन परमुटेशन, एंड अल्फ़ा 4 इज़ इवन परमुटेशन। अल्फ़ा 2 इज़ एन ऑड परमुटेशन इन आवर केस। तो देयरफॉर
therefore alpha 1, alpha 3 and alpha 4 are even permutations. So these are even permutations. वो permutations जिनकी ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की शक्ल में रिप्रेजेंटेशन में ट्रांसपोजिशंस की तादाद इवन हो इज कॉल्ड इवन परम्यूटेशन. एंड अल्फा 2 इज ऑड परम्यूटेशन, क्योंकि इसमें ट्रांसपोजिशन की तादाद 3 है. 3 इज एन ऑड नंबर एंड अल्फा 2 इज एन ऑड परम्यूटेशन. सो किसी परम्यूटेशन को साइकिल की शक्ल में कन्वर्ट करने के बाद उस साइकिल को हम ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखें और ट्रांसपोजिशंस की तादाद जो है वो इवन हो तो दैट परम्यूटेशन इज कॉल्ड इवन परम्यूटेशन. ऑड हो तो दैट परम्यूटेशन इज कॉल्ड ऑड परम्यूटेशन. सो लेट्स हैव डेफिनेशन. सो डेफिनेशन, this is definition of even permutation. So definition goes as follows: a permutation अल्फा, आप जानते हैं कि परम्यूटेशन जो है वो इस सिमेट्रिक ग्रुप Sn के एलिमेंट्स होती हैं. सो अ परम्यूटेशन अल्फा इज सेड टू बी एन इवन परम्यूटेशन, is said to be an even permutation if it can be written as, or it can be represented as product of even number of transpositions. Similarly, we can define odd permutation as well. So their definition goes as follows: definition for odd permutation. So a permutation alpha belonging to Sn is said to be an odd permutation if it can be written as product of odd number of transpositions. So it is very easy to decide which permutation is even and which permutation is odd. आप उस permutation को साइकिल की शक्ल में कन्वर्ट करने के बाद या साइकिल के प्रोडक्ट की शक्ल में कन्वर्ट करने के बाद उन साइकिल्स को ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट शक्ल में लिख लीजिए. अगर ट्रांसपोजिशंस की तादाद इवन हो तो परम्यूटेशन इज इवन परम्यूटेशन, अगर ऑड हो तो परम्यूटेशन इज ऑड परम्यूटेशन. अब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं परम्यूटेशंस के बारे में, वो हम लिख लेते हैं एंड देन वी विल डिस्कस अ लिटिल मोर अबाउट दैट.
First one is product of two even permutations is an even permutation. So first thing we have to note is that product of two even permutations is an even permutation. So product of two even permutations is an even permutation. Secondly, product of an even permutation and an odd permutation is an odd permutation. अगर एक even permutation और odd permutation को हम आपस में multiply करें तो result will be odd permutation. So the product of an even permutation and an odd permutation is an odd permutation. तो अगर आप odd permutation को अगर आप even permutation को odd permutation से multiply करेंगे तो result will be an odd permutation. And then number 3, the product of two odd permutations is an even permutation. The product of two odd permutations is an even permutation. ये जो रिज़ल्ट्स या ये जो ऑब्ज़र्वेशन मैंने लिखी हैं इनसे मुतल्लिक एक बात नोट कीजिए कि ये जो रूल्स हैं इनको याद रखने के लिए एक चीज़ थोड़ी हेल्पफुल होती है और वो कुछ इस तरह से है कि लेट्स मेक एन ऑब्ज़र्वेशन. ये बात हम जानते हैं कि अगर हम एक इवन नंबर के साथ ऐड करें तो रिज़ल्ट हमारे पास इवन नंबर आता है. इवन नंबर एडेड विद इवन नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर. और अगर हम एक इवन नंबर को एक ऑड नंबर में ऐड करें तो रिज़ल्ट हमारे पास ऑड नंबर आता है. सो इवन प्लस ऑड is equal to odd. And similarly 9 plus 4 is equal to 13 as well. So you can note that odd plus even is equal to odd. और अगर हम एक ऑड नंबर को ऑड नंबर के साथ ऐड करें तो रिज़ल्ट इवन नंबर आता है. सो ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन. ये जो स्कीम मैंने लिखी है ये इसलिए हेल्पफुल होती है कि आप इसे अगर अपने जहन में रखें तो
यहाँ तो हमने एडिशन के लिहाज से लिखा है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स के हवाले से। परमुटेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इनके साथ रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि अगर इवन परमुटेशन को इवन परमुटेशन से मल्टीप्लाई करें तो इवन परमुटेशन रिज़ल्ट आएगा। अगर इवन परमुटेशन को ऑड परमुटेशन से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट ऑड परमुटेशन होगा। और अगर आप ऑड परमुटेशन को इवन परमुटेशन से मल्टीप्लाई करें तो भी रिज़ल्ट ऑड परमुटेशन होगा। और अगर आप ऑड परमुटेशन को ऑड परमुटेशन से मल्टीप्लाई करें तो फिर रिज़ल्ट इवन परमुटेशन होगा। इनफैक्ट ये जो ऊपर रिज़ल्ट्स हमने लिखे हैं, इन रिज़ल्ट्स को प्रूव करने के लिए जब हम प्रूव करते हैं एज ए थ्योरम तो हमें इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करना पड़ता है। सो आई रिपीट इट अगेन, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशंस इज़ एन इवन परमुटेशन, product of an even and an odd permutation is equal to odd permutation, product of an odd permutation and an even permutation is equal to odd permutation, and product of two odd permutations is equal to even permutation। तो इस स्कीम के तहत आप उन चीज़ों को याद कर सकते हैं और ये चीज़ें आप अपने स्कूल लेवल से अच्छी तरह से जानते हैं। सो लेट्स हैव एन अदर नोट, कंसिडर दिस पर्टिकुलर परमुटेशन। आपको याद होगा ये परमुटेशन आप डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। सिमेट्रिक ग्रुप में ये आइडेंटिटी एलिमेंट का रोल प्ले करती है। सो 1 2 3 4 5 and 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3, 4 goes to 4, 5 goes to 5 and this is called identity permutation। इसको अगर आप लिखे साइकिल्स की शक्ल में तो आप देखिए इसमें 1 साइकिल ही है, 1 देन 1 गोज़ टू 1 ये एक ही साइकिल है, 2 गोज़ टू 2 ये 1 साइकिल, फिर 3 गोज़ टू 3, 4 गोज़ टू 4, 5 गोज़ टू 5। तो इस केस में इस परमुटेशन को आप 1 साइकिल्स के प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकते हैं। इस केस में आपको इस परमुटेशन की साइकिल्स की शक्ल में रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें आपको ट्रांसपोजिशंस नहीं मिली। सो यू कैन से दैट नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इन दिस केस इज इक्वल टू 0। सो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस for this particular permutation I is equal to 0। और इवन नंबर्स आप जानते हैं 2 4 6 8 10 12 ये इवन नंबर्स होते हैं। और जो है 1 3 5 7 9 11 13 15 ये ऑड नंबर्स होते हैं। तो 0 को कभी हमें फैसला करना पड़े ये इवन है या ऑड है तो वी कंसिडर इट एज इवन नंबर। सो in this way identity permutation is an even permutation। so in fact we can define it। so we define, लेकिन अगर आप 0 को even number consider करें तो then it is very easy to see that I is an even permutation। so we can write, we define I as an even permutation। आइडेंटिटी परमुटेशन जो है ये इवन परमुटेशन होती है। नंबर 5, अब अगर आप अपने तौर पर ट्राई करके देख सकते हैं कि परमुटेशन ले लीजिए और उस परमुटेशन अगर वो परमुटेशन इवन है तो उसका अगर एक इवन परमुटेशन लेकर आप उसका इन्वर्स लीजिए और आप चेक कीजिए दैट विल बी अगेन एन इवन परमुटेशन। सो लेट मी नोट दैट एज वेल, द इन्वर्स ऑफ एन इवन परमुटेशन, द इन्वर्स ऑफ एन इवन परमुटेशन is an even permutation।
तो किसी इवन परमुटेशन का इन्वर्स भी इवन परमुटेशन होगा। अब देखिए इन ऑब्जर्वेशन के साथ अब आप देख सकते हैं नंबर 1, दो इवन परमुटेशन का प्रोडक्ट भी इवन परमुटेशन होता है, आइडेंटिटी परमुटेशन इवन परमुटेशन होती है, और किसी इवन परमुटेशन का इन्वर्स भी इवन परमुटेशन होता है। तो यहाँ से यू कैन कंक्लूड दैट द सेट ऑफ इवन परमुटेशंस इज़ अ सब ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप, जिसकी आप परमुटेशन ले रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इवन परमुटेशन का जो सेट है ये खुद भी ग्रुप बनाता है अंडर बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशंस। इस बात को हम अलग अलग भी प्रूव कर सकते थे, लेकिन हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे जिससे ये चीज़ काफ़ी हद तक बड़ी आसानी से बड़ी कम्पैक्ट शक्ल में प्रूव हो जाएगी। सो बिफोर दैट लेट्स मेक एन अदर ऑब्जर्वेशन, एंड दैट इज़ let's consider Sn S आप ले लीजिए 1 2 3 so on up to n। देन हम जानते हैं कि Sn के एलिमेंट्स की तादाद जो है और ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर सिमेट्रिक ग्रुप, ऑर्डर ऑफ दिस सिमेट्रिक ग्रुप इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ये बात हम इससे पहले जब सिमेट्रिक ग्रुप्स हम स्टडी कर रहे थे उस वक्त हमने इस बात को नोट किया था। फिर ये नोट कीजिए कि जब हम किसी सेट पर परमुटेशन ले लेते हैं तो उसमें आधी परमुटेशंस इवन होती हैं और आधी परमुटेशंस ऑड होती हैं। तो टोटल परमुटेशंस की तादाद n फैक्टोरियल है, देयरफॉर नंबर ऑफ इवन परमुटेशंस विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर number of even permutations is equal to n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो इवन परमुटेशंस की तादाद है, एंड नंबर ऑफ ऑड परमुटेशंस ऑड परमुटेशंस की तादाद भी n फैक्टोरियल अपॉन 2 होगी। तो आधी परमुटेशंस इवन होती हैं, आधी परमुटेशन ऑड होती हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ इवन परमुटेशंस इज n फैक्टोरियल अपॉन 2 एंड नंबर ऑफ ऑड परमुटेशंस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 2 एज वेल। सो So let's write it in an other way. Let हम सेट बना लेते हैं alpha belonging to Sn such that alpha is even। तो Sn में से हम सिर्फ इवन परमुटेशन का सेट बना लेते हैं। इस सेट को हम कैपिटल A n के साथ रिविजन करते हैं, n एज सबस्क्रिप्ट। दिस इज सबसेट ऑफ Sn, दिस इज सबसेट ऑफ Sn विच comprises of even permutations। देन जो बात हम डिस्कस कर रहे थे उसके मुताबिक फिर An में जो एलिमेंट्स की तादाद है वो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 होगी। ये हमने इससे पीछे ये बात लिखी थी। तो नंबर ऑफ इवन परमुटेशन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। Now let's come to the proposition we were discussing before.
So let's come to the proposition. जो मैंने आपसे कहा था कि हम ये प्रोपोजिशन प्रूव करेंगे तो इससे AN जो है वो ग्रुप प्रूव हो जाएगा. सो द प्रोपोजिशन सेज दैट let Sn be the symmetric group on let Sn be the symmetric group on this particular set S जिसमें n elements हैं 1 2 3 so on up to n. And let AN be the set of even permutations alpha belonging to Sn such that alpha is even. Then प्रूव हम ये करेंगे कि ये जो AN है ये Sn का नॉर्मल सब ग्रुप है. तो ऐसा करने से AN फिर ऑटोमेटिकली सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा Sn का. इन पर्टिकुलर इट विल बी अ ग्रुप. सो लेट्स हैव द प्रूफ. प्रूफ इज क्वाइट सिंपल. सिर्फ पहले एक बात नोट कीजिए कि वी नोट दैट ये पर्टिकुलर सेट जो है जिसमें से दो एलिमेंट्स हैं 1 और -1. दिस पर्टिकुलर सेट इज ग्रुप और बाइनरी ऑपरेशन इसका है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन. और बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं ये ग्रुप इसलिए है कि कोई भी दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें रिजल्ट आपको इसी में मिलेगा. सो दिस मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज्ड. 1 इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. 1 का इन्वर्स 1 है. -1 का इन्वर्स -1 है. एवरीथिंग गोज़ वेरी वेल. सो दिस पर्टिकुलर सेट इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. और इस ग्रुप को हम G कह लेते हैं. लेट्स कॉल इट G. सो दिस इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. हैविंग सेड दैट हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं. वी डिफाइन अ फंक्शन इस फंक्शन को हम f कह लेते हैं. इस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं सिमेट्रिक ग्रुप Sn से लेकर इसी पर्टिकुलर ग्रुप G तक. यानी इसकी डोमेन ग्रुप Sn है और को डोमेन इसकी ये वाला ग्रुप G है. और ये फंक्शन हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं एज फॉलोज. डेफिनेशन इसकी ये होगी कि अगर ये फंक्शन f जो है वो अल्फ़ा पर इफ़ेक्ट करे, किसी भी परमुटेशन अल्फ़ा पर इफ़ेक्ट करे और वो परमुटेशन अगर इवन है तो f अल्फ़ा का जवाब 1 आएगा इफ़ अल्फ़ा इज़ इवन. और अगर अल्फ़ा जो है वो ऑड है तो f अल्फ़ा का जवाब -1 आएगा इफ़ अल्फ़ा इज़ ऑड. तो दिस इज़ द वे वी डिफाइन दिस पर्टिकुलर फंक्शन. हम प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है. तो वी शैल प्रूव दैट f is group homomorphism. ग्रुप होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हमें 3 केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे इनफैक्ट. सो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट दिस इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म वी हैव टू एस्टैब्लिश
हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप एस एन की कोई भी दो परमुटेशन ले लें, अल्फ़ा बीटा, और इन पर अगर आप एफ़ को अप्लाई करें तो ये रिज़ल्ट एफ़ अल्फ़ा इंटू एफ़ बीटा के बराबर होगा। कि यही डेफिनेशन है किसी फंक्शन के ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होने के लिए। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू इस्टेब्लिश। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें 3 केसेस को डिस्कस करना होगा। सो वी हैव 3 केसेस, 3 ही पॉसिबल केसेस बनते हैं इसके। तो केस 1, केस 1 ये है कि अगर अल्फ़ा और बीटा दोनों इवन परम्यूटेशन हो, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर बोथ इवन, अगर ये दोनों इवन हो तो आप जानते हैं इवन परम्यूटेशन का प्रोडक्ट भी इवन होता है, देन अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट जो है ये भी इवन होगा। Therefore अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट चूँकि इवन परम्यूटेशन है तो एफ़ अल्फ़ा बीटा का रिजल्ट 1 होगा। अल्फ़ा भी इवन परम्यूटेशन है तो एफ़ अल्फ़ा जो है इसका रिजल्ट भी 1 होगा। बीटा भी इवन परम्यूटेशन है तो एफ़ बीटा का रिजल्ट भी 1 होगा, बिकॉज दिस इज़ द वे वी हैव डिफाइंड दिस फंक्शन। एंड देयरफॉर आप नोट कर सकते हैं फिर कि देयरफॉर एफ़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, और 1 को आप लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड विद 1, और ये 1 बराबर है एफ़ अल्फ़ा के। इस 1 को आप एफ़ बीटा लिख दीजिए। तो देयरफॉर एफ़ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू एफ़ अल्फ़ा मल्टीप्लाइड विद एफ़ बीटा। तो अगर अल्फ़ा और बीटा दोनों इवन परम्यूटेशन हो तो ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो जाती है। And next we come to the case if one of them is even and one of them is odd. So we come to case 2. So if alpha and, या अगर हम चाहें तो पहले हम दोनों को odd ले लेते हैं। तो if alpha and beta are both odd permutations, so if alpha and beta, हम पहले एक को odd और एक को even ले लेते हैं, हमारी तरतीब यही थी। तो if alpha is even and beta is odd, if alpha is even and beta is odd, फिर हम जानते हैं कि जब हम एक इवन परम्यूटेशन को ऑड परम्यूटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट ऑड परम्यूटेशन आती है। देन अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ ऑड, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट परम्यूटेशन जो है ये ऑड होगी। एंड देयरफॉर अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट चूँकि ऑड है तो देयरफॉर एफ़ अल्फ़ा बीटा का रिजल्ट -1 आएगा। जब हमने डिफ़ाइन किया है फंक्शन को इस तरीके से, अल्फ़ा को हमने इवन लिया हुआ है तो एफ़ अल्फ़ा का रिजल्ट जो है वो 1 आएगा। बीटा को हमने ऑड लिया हुआ है तो एफ़ बीटा का रिजल्ट जो है वो -1 होगा। एंड देयरफॉर एफ़ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -1,
और इस -1 को अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड विद -1, और इस 1 की जगह पर आप एफ एल्फ़ा लिख दीजिए और -1 की जगह पर आप एफ बीटा लिख दीजिए। तो देयरफॉर इन दिस केस एफ एल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट, एफ इफेक्टेड ऑन प्रोडक्ट ऑफ एल्फ़ा एंड बीटा इज इक्वल टू एफ एल्फ़ा मल्टीप्लाइड विद एफ बीटा। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन इस केस में भी सेटिस्फाई हो जाती है। और इसी तरह से अगर आप अल्फ़ा को ऑड लें और बीटा को इवन लें, इवन देन इट विल वर्क सिमिलरली if alpha is odd and beta is even, we would have तो ऐसा हो तो भी हमें यही रिजल्ट मिलेगा, अल्फ़ा और बीटा के प्रोडक्ट पर एफ का इफेक्ट इज इक्वल टू एफ एल्फ़ा इंटू एफ बीटा। So this is case 2. Now we come to case 3. केस 3 में हम अल्फ़ा और बीटा दोनों को ऑड परमुटेशंस ले लेते हैं। तो इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर बोथ ऑड परमुटेशंस, then their product अल्फ़ा इंटू बीटा। तो मैंने आपको बताया हुआ है और हमने इस बात को डिटेल में डिस्कस किया है कि दो ऑड परमुटेशंस का प्रोडक्ट इवन परमुटेशन होता है। तो देन देयर प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इज एन इवन परमुटेशन। दो ऑड परमुटेशन का प्रोडक्ट इवन परमुटेशन होता है एंड देयरफॉर अब अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट चूंकि इवन परमुटेशन है, तो अल्फ़ा और बीटा के प्रोडक्ट पर जब आप एफ अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। अल्फ़ा ऑड है तो एफ पर जब आप अल्फ़ा पर जब आप एफ अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट -1 आएगा। बीटा ऑड है तो बीटा पर जब आप एफ अप्लाई करेंगे तो एफ बीटा का रिजल्ट भी -1 आएगा एंड देयरफॉर एफ एल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1, और 1 को आप लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाइड विद -1, और इस -1 की जगह पर आप एफ एल्फ़ा लिख दीजिए और इस -1 की जगह पर आप एफ बीटा लिख दीजिए। तो हमने ये बात इस्टेब्लिश कर दी। देयरफॉर एफ एल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू एफ एल्फ़ा मल्टीप्लाइड विद एफ बीटा इन दिस केस एज वेल। तो देयरफॉर इन ऑल पॉसिबल केसेस, देयरफॉर यही पॉसिबल केसेस थे, देयरफॉर इन ऑल पॉसिबल केसेस एफ एल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू एफ एल्फ़ा मल्टीप्लाइड विद एफ बीटा एंड देयरफॉर एफ इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। Therefore, F is a group homomorphism. अब देखिए ये चीज़ प्रूव करने के बाद कि F जो है वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, हम देखते हैं F क्या है। सो वी हैव F जो है ये हमने प्रूव कर दिया है। This is a group homomorphism from symmetric group Sn to group G। G ग्रुप है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 -1 और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। सो वी हैव F एज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। सो दिस इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ये बात हमने प्रूव की है। अब आप ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से मतलब कुछ रिजल्ट निकाल कीजिए। आपको याद होगा हमने प्रूव किया था कि अगर हमें कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दे दिया जाए तो उस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का जो कर्नेल है
वो डोमेन वाले ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। सो वी नो दैट कर्नल जो है, कर्नल ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, इसे नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए डोमेन का, डोमेन वाले ग्रुप का Sn। किसी भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का कर्नल जो है वो डोमेन वाले ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और वी हैव प्रूव्ड दिस पर्टिकुलर थिंग ऑलरेडी। So having said that, let's see what kernel of f is going to be. Now kernel of f is equal to, ये डोमेन को बिलोंग करने वाले वो एलिमेंट्स होंगे या वो परमुटेशन होंगी Sn की जिन पर f का इफ़ेक्ट जो है वो को डोमेन जो कि 1 - 1 है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट आता हो, और g का आइडेंटिटी एलिमेंट आप जानते हैं 1 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी g ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू दोज परमुटेशंस ऑफ Sn फॉर विच f अल्फा इज इक्वल टू 1, और जिस परमुटेशन पर f का इफेक्ट 1 हो, हमने f को डिफाइन इस तरह से किया हुआ है, वो परमुटेशन इवन परमुटेशन होती है। सो कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू अल्फा बिलोंगिंग टू Sn सच दैट अल्फा इज इवन, और Sn की इवन परमुटेशन का सेट जो है इसे हमने An से रिप्रेजेंट किया हुआ है ये चीज़। सो पुट दिस थिंग इन, पुट इन वही जो बात इससे पहले हमने डिस्कस की थी कि कर्नल जो है वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का नॉर्मल सब ग्रुप होता है डोमेन वाले ग्रुप का, वी ऑब्टेन। तो ऐसा करने से हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। कर्नल ऑफ f की जगह पर आप लिख दीजिए an। सो an इज सब ग्रुप ऑफ, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Sn। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। अब इसकी अगर आप कॉरोलरी के तौर पर अगर आप चाहें तो इससे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि an इज सब ग्रुप ऑफ Sn, और आप ये भी कह सकते हैं यार an इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशंस। So this completes the proof.